हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ व्हाई नॉट नदीम। आज हम जाने वाले हैं लकम्बा इन अ रेस्टोरेंट कॉल्ड रॉयल बैतुल मंदी। दिस प्लेस इज़ एक्चुअली वेरी फेमस फॉर मंदी। मंदी एक ऐसी डिश है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, एंड इट्स वन ऑफ दोज डिशेस दैट आई लव ईटिंग। इट्स बिकॉज इट्स गॉट द राइस एंड इट्स गॉट मीट इन द सेंटर ऑफ द डिश। आई रिमेंबर बहुत साल पहले जब मैं दुबई गया था तो मैंने मंदी खाई थी वहाँ पे तो वो मेरी मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने मंदी टेस्ट किया था, और तब से मैं मंदी का बड़ा फ़ैन हूँ। तो सिडनी में कुछ सालों से मंदी के रेस्टोरेंट्स कुछ खुलने लगे हैं, तो आई थॉट इट विल बी अ गुड वीडियो टू मेक, to go and show you guys this restaurant that serves mandi food in Lakamba. It's called Royal Baitul Mandi. So I want you guys to join me in this journey and have some fun. तो चलिए जाके खाते हैं मंदी। और हमारे साथ हैं हमारे दो और दोस्त, एक हमारे राज मल्होत्रा और दूसरे हैं मंसूर अली, और ये सब खाने वाले हैं आज मंदी। चले। Way to this mandi place from our place. Obviously it's a bit of a drive. हमारे घर से थोड़ी देर की दूरी में है, तो रास्ते में कुछ बातें करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे मंसूर से, क्या उन्होंने मंदी खाई है पहले। मंसूर, क्या आपने मंदी खाई है? मंसूर, सिर्फ एक बार खाई है। आपको पसंद आई मंसूर मंदी? I love meat, bro. राज, have you eaten मंदी? क्या आपने मंदी खाया है? राज भाई हमारे चेन्नई से हैं और मंसूर भाई भी चेन्नई से हैं, बट इट्स अ वेरी मिक्स्ड कोलैबोरेशन हियर बिकॉज आई स्पीक उर्दू एट होम, राज स्पीक्स तमिल एट होम, एंड देन we've got Mansoor who also speaks Urdu at home. So we've got quite a bit of languages going on around at the moment. So Raj, you tell me what do you think about mandi? Have you tried this before? What are your thoughts? Yeah, mandi is an amazing dish. It's got good aroma, flavor, and the meat is really tender. So it's a very enjoyable dish, especially for people who love meat and rice as a combination. It's a brilliant dish. Or sorry, another? Yes, except the fact we are going for meat. Correct. Okay. So the other thing that about this mandi is a very Arabian dish, and a lot of sheikhs obviously will like eating these kind of dishes, right? So when I went to Dubai, जब मैं गया था तो I very clearly remember कि जब मैं वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में गया था तो लोग नीचे बैठ के प्रॉपर तरीके से एक प्लेट में मीट बीच में रखा हुआ और चारों तरफ चावल उसके, और 3-4 लोग बैठ के खा रहे हैं, और इट वॉज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग। सो जनरली हमारा जो पॉपुलेशन होता है, they are used to eating it a plate with one person eating in his own plate with his fork and spoon. लेकिन मंदी एक ऐसी डिश है जो 3-4 लोग बैठ के एक साथ खा सकते हैं एक ही थाली में, and it brings people together, and I think that's what's good about mandi. So it's not just a dish that is from a country, but I think it also represents the culture of that country. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी मंदी के बारे में, तो इसलिए मैं इसका वीडियो बनाना चाहता था।
felt so strong. Whoa, let's go and take it all the way to the top. Baby, we will never stop. I won't let you go, no. Hey, gotta make you a confession. Boy, you're the most beautiful I've ever seen. Like a king, baby, you're the one for me. Hey, pretty boy, I got a question. Do you wanna roll with me? Do you wanna stroll with me? Come on, baby. Boy, you're about no one else. Only you in my head. Let's give it a try. Come on and baby, we'll fly right up to the sky. Hey, pretty boy, you're like, boy, you're above all. You're making me fall. Can't think about no one. The lamb is just, it's just the perfect level of spice इसके अंदर है कि आपको ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और एकदम without blend भी नहीं है. It's just the right balance of spices that are going into this dish. And when you put it in your mouth, it's just a flavor burst that is happening. And I think that is the best thing about this mandi. You just can't stop eating this. If you're a meat lover, I think this dish is a must, honestly. How's the chicken, Mansoor? It's next level, bro. So you're gonna try the sauce. I think this is one of the sauces they give you. So I'll try the sauce and I'll tell you how this tastes. It's a tomato flavor sauce and it just goes really, really well with this mandi rice. And I think that's the best thing about it. I think all those spices are just beautifully complementing each other. And you've got these raisins here. I'm not sure if a lot of people would have experienced raisins in their food, but जब ये raisin rice के साथ मिलके अब ये मंदी का जो spice है, ये सब आप मिला के खाते हो ना, तो इसका जो flavor है वो अलग ही level पे होता है. So because this is a mixed plate, you've got fish and you've got chicken and you've got lamb. So I'm going to eat a little bit of this fish. It's really nice and tender, man. So you want to eat some? Okay. So I'm going to eat this chicken with a little bit of the sauce. Just going to dip that little bit into the sauce. The best way to eat mandi is अपने हाथों से, तो क्योंकि स्पून से आप खा नहीं सकते क्योंकि ये डिश ऐसी बनी ही नहीं है कि आप स्पून से खाओ इसको. So there's no point trying it in food. If you want to enjoy the real flavor of mandi, I think the best way to eat this is with your hands, and that's when you get the full flavor of it. So I've just dipped it into that sauce. I'll dip it again a little bit more. Chicken is very tender. It's got a sweet tomato sauce going on inside. And you know, oh man, there's nothing more to say. You guys have to try this dish. तो मैं मंदी जब खा रहा था तो ये मंदी बहुत लेस स्पाइसफुल है. मतलब लोग जो ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना पसंद करते हैं वो भी खा सकते हैं, और अगर स्पाइस इंक्रीज चाहिए तो उनके लिए भी अलग मंदी टाइप आपने कहा था कि अवेलेबल है. तो व्हाट इज़ दिस कॉम्बिनेशन दैट यू आर डूइंग? ये ऐसा है ना कि मंदी बेसिकली है अरेबियन कुजीन. तो आप लोग को पता है काफ़ी अरेबियन पीपल और जो दूसरी कंट्री के लोग होते हैं सिवाय फ्रॉम एशियन से हटके वो स्पाइसी नहीं खाते हैं. तो मंदी ऐसी डिश है कि आप 7 के 7 दिन खा सकते हैं. खाने से ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ना कोई आपको तकलीफ़ होगी पेट में, ना कोई चीज़ की. ऐसा नहीं है कि इसमें इतने स्पाइसेस होते हैं कि आपका पेट ख़राब हो जाए, ये नहीं. 7 के 7 दिन आप इसको मज़े से और हर दिन जब खाओगे आप उसका लुफ्त उठाते हुए खाओगे. और खाने के बाद सबसे अच्छा आपको फीडबैक यही है कि भाई आप तंदुरुस्त और सेहतमंद हैं. उसमें इस तरह के मग़ज़ियात और इस तरह का इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं. मतलब 7 दिन अगर खाए तो वेट बढ़ेगा नहीं, आपका ख्याल ये है? नहीं, डेफिनेटली वेट तो थोड़ा बढ़ेगा, बट चीज़ों पे लोगों के पास दूसरी चीज़ें भी होती है जिस तरह से वो अपने आप को कंट्रोल रखते हैं. बट आई थिंक जब खाने की और अपने पसंद की बात आती है तो नो कॉम्प्रोमाइज़.
So you mean to say that this is a light on stomach kind of food? Definitely, at the time of having your dinner or lunch, it's very heavy. It makes your tummy very full. Apart from that, it's very good for your tummy as well. तो ये पान का जो कॉन्सेप्ट है आपने पहले ही बताया था, लेकिन मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि पान जो है वो कैसे आपने स्टार्ट किया, और थोड़े किस्म के पान जो आपके पास है उनके थोड़े नाम लेके बताइए. एक दो तो मुझे हंसी आई थी, आप नाम आप बताइए उसके बारे में. ऐसा है कि कहा जाता है कि भाई खाना अगर आप जब पेट भर के खाते हो, और जैसा कि हमारे हैदराबादी लैंग्वेज में कहा जाता है कि जब आप तबीयत से खाते हैं और मस्त हो जाते हैं, तब आपको ऐसी दो चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी होती है, अहमियत रखती है आपकी लाइफ में लेने के लिए. वो हो गई आपको एक चाय और दूसरा हो गया पान. अगर आप ये दो चीज़ों के साथ अपना अगर खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं तो समझो कि भाई ये कंप्लीट फूड ऑफ विज़िट हो गई. मतलब आपकी जो भी खाने की आपकी वो होती है, विज़िट होती है, जहाँ पे भी आप जाके खाना चाहते हैं, तो आपको सब परफेक्टली हो जाता है स्टार्ट टू एंड. तो पान खाने से डाइजेशन बहुत अच्छा होता है. सबसे पहली चीज़, बिटर लीफ हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ही अच्छा है. उसमें एज का कोई फैक्टर मैटर नहीं करता. बच्चे से लेके बूढ़े तक पान का इस्तेमाल कर सकते हैं, पान खाते हैं. तो जब वो चीज़ें डिफरेंट फ्लेवर्स में हम दे सकते हैं मार्केट में पब्लिक को, तो फिर क्यों नहीं पान लोगों को हमने सोचा कि भाई चलो ये एक फ्लेवर ऑफ टेस्ट दे के देखते हैं, अगर पसंद आएगा तो बेशक इसको रखते हैं. तो हमने एक दो मतलब ऐसे ही लोगों को स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था. पान बहुत पसंद आया. आप सिर्फ लोग पान के लिए आते हैं डिफरेंट फ्लेवर ऑफ पान खाने. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि भाई हमारे पास काफ़ी फ्लेवर्स है. पूरे ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई भी पान की शॉप या कोई भी जगह पे चले जाओ, कहीं नहीं मिलेगा. क्या फ्लेवर्स है आपके पास? सिर्फ एक ही शॉप है जहाँ पे मिलेगा, वो है रॉयल बैतल मंदी. तो हमारी पान का नाम है रॉयल पान महल. हमारे पास है 40 फ्लेवर्स, और वो फ्लेवर्स के नाम जैसे कि आप कोई भी फ्रूट का नाम ले लो, वो फ्लेवर हमारे पास मौजूद है. जैसे स्ट्रॉबेरी, मैंगो, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, अनार और पीच, फिर केसर, ज़ाफ़रान, रात रानी, नाइट ऑफ क्वीन, प्लस तो पान खाने के लिए अगर रात में कोई जगह चाहिए तो रॉयल बैतुल मंदी पहुंच जाए लकम्बा, और हर फ्लेवर का पान अवेलेबल है. वो और एक खासियत जो है इस मंदी की दुकान की है ये चाय. और ये चाय जब मैं लास्ट टाइम आया तो पिया, मैं बहुत खुश हुआ था. तो ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ. मैं चाय पी के बताता हूँ कितनी अच्छी है. वैसे तो मुझे पहले ही पता है कि ये चाय बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी एक बार आपके लिए पी लेता हूँ. इसका कलर इट्स स्वीट इंडियन चाय जो आपको आपके देश में मिलती है. आपने इंडिया में जो पी होगी ना, उसका फ्लेवर आपको मिलेगा. तो आई गारंटी यू, आप ये जब चाय पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. तो आई थिंक यू शुड रियली ट्राई दिस चाय. ये चाय की खासियत ये है कि कितना भी पियो, दिल और पीना बोलता. मतलब इसका मज़ा और फ्लेवर ही अलग है. अच्छा, ऐसा नहीं कि मेरी शॉप है कह रहा हूँ, नहीं. आप आइए मंदी पे. हमने लोगों के लिए ख़ास तौर से जो भी मंदी खाते हैं यहाँ पे, उनके लिए मैंने कॉम्प्लीमेंट्री इसीलिए रखी कि भाई उनको भी टेस्ट और फ्लेवर पता चले एक्चुअल चाय होती कैसी. तो मैं इधर आया हूँ तो मुझे दो तीन चीज़ें यहाँ पे ऐसी थोड़ी अलग दिखी. एक तो पहले आपने सुबह जो है इडली डोसा ब्रेकफास्ट में रखा है, जो मतलब लोग शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं, लाइक वेजिटेरियन काइंड ऑफ फूड है. और उसके बाद शाम को आपने दोपहर के बाद एकदम चेंज कर दिया और फिर लैम और चिकन कर दिया इसको. तो ये आइडिया कैसा है आपको, और ये क्यों स्टार्ट किया? ये इसीलिए स्टार्ट किया मैंने कि ये जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी मल्टी कल्चरल कंट्री है. तो यहाँ पे मैंने जब मंदी ओपन की थी तो मेरी रेस्टोरेंट ओपन होती थी 12:30 बजे. तो सुबह का टाइम मैं वैसे भी फारिग ही था. तो कई मेरे ऐसे मित्र हैं और दोस्त हैं जो वेजिटेरियन है, जो कह रहे हैं कि भाई तूने रेस्टोरेंट को लिए, हम आ नहीं पा रहे हैं, हमें वो कोई फ्लेवर ऑफ टेस्ट तेरा मतलब मिलता नहीं है तेरे रॉयल पे. तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भाई चलो रॉयल बैतल मंदी पे कोई रॉयल ब्रेकफास्ट करके निकालते हैं, जो एक नया ट्रेंड कर देते हैं मार्केट में.
कि ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ मिलती है तो एक ही चीज़ पे रुके रहे। तो उस हिसाब से मैंने इडली, डोसा, वड़ा, डोसे में कई वैराइटीज़ ऑफ डोसे हमने निकाले। नॉन वेज डोसे भी है उसमें, वेजिटेरियन डोसे है। सबसे फेमस डोसा हमारे पास जो जाता है वो है बेगम बाज़ार डोसा, तो कभी ट्राई करिए। बेगम बाज़ार डोसा, ये क्या डोसा है? ये एक बस ऐसे ही हमने एक ट्रेंडिंग नाम दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा है, पब्लिक खुशी से खा रही है। उसको हमने सोचा था कि भाई सिडनी बाज़ार डोसा रखेंगे, तो उसको हमने नाम दे दिया बेगम बाज़ार डोसा। तो खाने के बाद लोग वाकई में बहुत उसको प्रेज़ कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा टेस्ट है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा चलो सुबह के टाइम पे वेजिटेरियन डिश देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। कई फैमिली से जिसको ये पसंद आ रहा है, और कई स्टूडेंट्स, बैचलर्स और हमारी तरह कई यूथ है जो इसको, इस फ्लेवर ऑफ टेस्ट को लाइक कर रही है। तो ये मंदी क्या, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे 2-3 दुकान है। अभी सिडनी में थोड़ा कुछ 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दुकान है। तो आपके दुकान में ऐसी क्या चीज़ है जो इट्स ब्रिंगिंग समथिंग डिफरेंट टू कस्टमर्स? ये है ना कि ये तो मेरी दुकान का नाम रॉयल बैतल मंदी है, हाउस ऑफ मंदी, ठीक है। सबसे अच्छी खासियत हमारी मंदी की शॉप की ये है कि हमारे पास वैरायटी ऑफ मंदीज़ है जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में कोई मंदी शॉप नहीं देती। हमारे पास हर वैरायटी की मंदी मिलेगी आपको, चाहे वो आप लैम में ले लें, चिकन में ले लें, रिब मंदी भी आई बेट यू कोई देता नहीं होगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। और फ़िश मंदी जो हमारी अब फ़िलवक्त की सबसे सिग्नेचर मंदी बन चुकी है हमारी शॉप की और हमारे एरिए की। यहाँ पे जो भी आदमी आते हैं, काफ़ी 2 वीक्स या 3 वीक्स बैक जब मेलबर्न का लॉकडाउन नहीं था, मेलबर्न और एडिलेड, ब्रिस्बेन, यहाँ से इतने लोग आए हैं, सिर्फ यही पूछ रहे थे कि भाई रॉयल की मंदी खानी है। कई लोग मेरे को एज एन एविडेंस मैसेजेस भी दिखाए, कई उनके ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा कि भाई लोगों को पता चल गया है कि भाई वहाँ तक हमारी मंदी की खुशबू और फ्लेवर चला गया है, तो लोग पसंद कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी खासियत यही है कि हम वैरायटी ऑफ मंदी देते हैं, ना कि सिर्फ चिकन और मटन। 4 वैरायटी ऑफ मंदी कहीं पे नहीं मिलेगी और ऐसा फ्लेवर भी आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यही खासियत है कि भाई मंदी की हमारे पास जो मिलता है वो किसी के पास नहीं मिलता। और आप ये रात को कितनी बजे तक आपकी दुकान खुली होती है? हम लोग थोड़ा लेट नाइट खुला रखते हैं, जैसे कि रात के 2 बजे तक हमारी शॉप ओपन होती है। लोग काफ़ी जो जॉब ख़त्म करके आते हैं वो लोग भी यहाँ पे आकर खाना प्रेफर करते हैं, और बहुत लोगों को सहूलतें मिल जाती है। जिस तरह से कोई लेट नाइट जॉब स्टार्ट करता है, कोई लेट नाइट फिनिश करता है, उन लोगों को खाने के लिए दिक्कत होती है, तो वो आते हैं, खाते हैं और दुआ देते हैं, जाते हैं। और रीजनेबल रेट में उनको सब मिल जाता है। बेसिकली हमारे प्राइसेस बहुत ही अफोर्डेबल है। $20 में 2 लोग अपना पेट भर के खा लेते हैं, वो भी बहुत अच्छे वेट ऑफ लैम में। तो अगर लेट नाइट आके खाना है तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ऑफ कोर्स इट इज़। लेकम्बा ऐसी जगह है कि भाई लेट नाइट के लिए तो ये किंग ऑफ नाइट है समझो। तो खाना इधर का इतना अच्छा है कि लोग यहाँ पे बार बार आके यहाँ पे खा के जाते हैं, और बहुत सारे रिटर्निंग कस्टमर्स हैं जावेद भाई के, जो 2-3 बार यहाँ पे आके कंटिन्यूसली खा के जाते हैं। So I think that is one of the very good things about our restaurant, that people keep coming back. So I think उस कैटेगरी में ये रेस्टोरेंट गिरता है। तो thank you so much for your time, जावेद भाई।